It gives me immense pleasure to introduce our next speaker for today, who will be deliberating on the topic Patel's Vision in Action, Modern Educational Reforms, Dr. Varun Goel. He is an educationist and policy expert, and is currently working as assistant professor at LRDAB College, Gurgaon, with expertise in teaching various political science courses, including Indian politics, political theory, and international relations. His research focuses on political economy and media studies. Dr. Goel has presented papers at numerous seminars and conferences, and notably, he has received the Award of Honor from Punjab government for his contribution to society. So, sir, I welcome you on the dais. Thank you, ma'am. Let me first of all extend my thanks to Dr. Pargat Garcha, Principal GHG Khalsa College for Education, Guru Sasudar, for giving me this academic invitation. Also to thankful to the teaching and the non-teaching and the students of the college. I'm also grateful to the Dr. Indrajit, Principal of the Khalsa College, Guru Sasudar. Like Professor Baba, I am not expert in this field. I am social scientist, student of political science, and I am trained in political economy. And within political economy of Punjab, and my entire research is on media study and also the study of agriculture and the peasant study. So this is not my field, but luckily I have 10-year experience in the teacher activism. I have been associated with PCCTU and AI Facto and get a chance to read some policy document and get a chance to read policy document read between the lines. What are the hidden agenda of the policy document? This is the brief introduction of myself. My entire presentation based on the primary sources taken from the NSSO, employment and unemployment data service, and also periodical labor service, and the Punjab Appraisal Report 2022. My topic is Patel's Vision in Action and Modern Education Reform. I am particularly concentrated on the three areas, the three ideas and the three goals of Patel. First is national unity, and second is self-reliance, जिसके लिए हमने आज सुबह से वोकेशनल एजुकेशन की बात की है, and third is rural empowerment. So overall, how the education is important to achieve these three goals. So overall, मेरी overall presentation में ये होगा कि पटेल के जो ये तीन आइडियाज थे उसको कैसे हमने आज तक अचीव किया है, and what are the challenges we are facing in the education field. So first of all, as for Patel, the education is a cornerstone for the national unity, self-reliance and rural upliftment. If the nation is not educated, the unity cannot be maintained. Rural upliftment nahi ho. So his approach to education is purely inclusive. ऐसी एजुकेशन जिसमें एक गरीब का बच्चा भी जाएगा, एक गांव का बच्चा भी जाएगा। एजुकेशन मॉडर्न लाइन पे होगी और साथ साथ में उसमें कल्चर वैल्यूज भी होंगे। सो
पटेल का बेसिकली फंक्शन ये नहीं था कि हमने एक ऐसी जनरेशन को ट्रेन करना है जो सिर्फ रोट लर्नर हो, उसके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, वो स्किल्स जो इंडस्ट्री से मैच करती हैं, और जो इंडिया में सोशल अर्बन रूरल अर्बन डिवाइड है, सोशल इकोनॉमिकल डिवाइड है, उसको भी जो है दूर करना है। ये प्योरली उसका विजन था। सबसे पहले नेशनल यूनिटी थ्रू एजुकेशन। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशन, स्टेट एंड ए कंट्री। अगर हमने नेशनल यूनिटी की बात करनी है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ए नेशन। ऑल थ्री टर्म्स दे हैव colonial interpretations. What is nation? A single language, people from the single culture, single language constitute a nation. German people, German nation, उनकी लैंग्वेज जर्मन है। इंग्लिश नेशन लैंग्वेज के बेस पे था। बट इंडिया इज डिफरेंट, द स्टोरी ऑफ इंडिया इज डिफरेंट बिकॉज वी हैव ए शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री भी है हमारी, इसलिए इंडिया एक नेशन है। सो पटेल का विजन था कि अगर नेशनल यूनिटी को अचीव करना है उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन जो सेकुलर हो, एजुकेशन जो विद इन कम्युनिटी के बीच की बैरियर्स हैं, जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स है, कास्ट के बैरियर्स है, उसको दूर करती वो एजुकेशन जरूरी है। इवन कि ड्यूरिंग जब बात हो रही थी प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करने की बात हो रही थी, देन उस टाइम पे भी पटेल ने इस बात पे जोर दिया था कि एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन जरूरी है। विदाउट एजुकेटिंग द लीडर्स, लोकल लीडर्स, हम नेशनल यूनिटी को अचीव नहीं कर सकते। साथ में एजुकेशन कैसी हो? ऐसी एजुकेशन which nurtures mind and body and soul. एजुकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको लिटरेट करे, ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन विच शुड बी सेकुलर, आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। और साथ में पटेल ये कहता था कि लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज की भी जरूरत है। अगर बच्चे ने पढ़ना है तो उसके लिए लोकल लैंग्वेज में उसकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। गुजरात विद्यापीठ की बात पहले भी हुई थी, वहां पर फोकस गुजराती लैंग्वेज पे था, लोकल लैंग्वेज पे था। अगर इस पटेल के ये का जो वर्जन था, इसको इम्प्लीमेंट करना था, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोठारी कमीशन ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। पटेल का और कोठारी कमीशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी जो पटेल का विजन था लैंग्वेज को लेके, दैट हैज बीन फर्स्ट टाइम टेकन बाय द कोठारी कमीशन। इट वाज स्टिल इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आल्सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पटेल के नेशनल यूनिटी को लेके यूजीसी जो है हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम श्री स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें अराउंड 14,500 स्कूल है, जिसका प्योरली जो फोकस है वो एनईपी पे। शेयरिंग की बात की हुई है, चाहे वो फूड पे है, लैंग्वेज पे है, डिफरेंट कल्चर पे है, उसमें स्टेट्स को पेयर में जोड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल पंजाब और आंध्र प्रदेश, दो स्टेट्स के बच्चे इकट्ठे होंगे, दोनों अपने कल्चर्स को शेयर करेंगे। इसके साथ साथ लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम भी चल रहा है स्टेट्स स्कूल्स में, भाषा संगम के नाम पे, जिसपे बच्चा दूसरी लैंग्वेज का एक शब्द रोज जो है वो सीखता है। सो this will develop a sense of oneness. This will develop a sense of nation building. नेशन बिल्डिंग जो पटेल और नेहरू का आइडिया था, ये आइडिया पिछले 30-40 सालों से डिटेरियोरेट हुआ है। द नेशन बिल्डिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द स्टेट बिल्डिंग। जो हम आज बात करते हैं, हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं, वी आर पंजाबी, हम ये नहीं कहते वी आर इंडियंस। वो इंडियंस की जो सेंस थी, उस आइडिया तो अगर डेवलप किए
क्या कर रहे हो जो फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में जो सिलेबस चेंज हो रहा है उसमें क्या है, मुस्लिम्स की प्रोफेसर बैठे हैं, प्रोफेसर राकेश बाबा, इनको ज्यादा पता है कि मुस्लिम स्टडीज के कई चैप्टर्स जो रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक, अगर आप एक कम्युनिटी को डोमिनेट डिस्कोर्स से हटा दोगे, कैन वी अचीव द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी? नो। दलित राइटिंग्स को हटाया गया है उसमें। सो अगर नेशनल यूनिटी को अचीव करना है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी कल्चर एंड एवरी रिलीजन. So this type of reforms required in NCERT, in the textbooks. The second objective of Patel is practical and vocational knowledge. सुबह प्रोफेसर संजय सर ने ये कहा था कि वर्धा में 1937 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रोफेसर राकेश ने भी उस पर कंटिन्यू कहा किया था. अब फॉर पटेल vocational education is mandatory for reducing the foreign dependence of the country, for making the country self-sufficient, self-reliant. Without self-reliant, we always remain a slave. अगर हमने अपने पैरों पर खड़ा होना, अगर इंडिया ने डेवलप करना है तो उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन होनी जरूरी है. गुजरात विद्यापीठ में शुरू से ही वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज चल रहे थे. बट इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में सबसे पहले जो वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी वो 5th ईयर प्लान में हुई 2007 से पहले वोकेशनल एजुकेशन की नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता. देन नेशनल स्किल पॉलिसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 में आता है. एनईपी के अंडर क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग बच्चों को देनी अब शुरू कर की गई है. स्किल इंडिया डिजिटल मिशन, आज तक 2023 तक around 1 million students enrolled in the various vocational courses. इसी साथ there are some other schemes also, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, national apprentice promotion schemes. There are vocational training program. Even कि MOOCs भी कई चल रहे हैं वो vocational education पे है. But there is a question. There is a status of vocational education which is very bleak and which is very dark. From 2004 to 2023, only 4% population get the vocational training, formal vocational training, from the colleges, and the informal vocational training 4% to around 11.5%. सो वोकेशनल ट्रेनिंग में जो बच्चा अपने परिवार से सीख रहा है उसकी ट्रेनिंग ज्यादा हो रही है. अभी भी लार्ज पॉपुलेशन, अराउंड 65% पॉपुलेशन, दे आर नॉन ट्रेनिंग, जिनके पास कोई वोकेशनल स्किल है ही नहीं. ये डाटा एनएसएसओ से, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे से और पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे से लिया गया है ये सारा डाटा. इसके अलावा कुछ और चीजें भी जो हैं वो डरावनी हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के इंडिया के स्टेटस को लेकर. मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जिनकी ड्यूरेशन 10 दिन तक की है, इसका मतलब इंडिविजुअल्स आर मोर इंटरेस्टेड ओनली इन डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स. Between 2017-18 and 2023-24, vocational training enrollment dropped for 29% to 14%. This is a sharp decline, almost half decline, 50% decline. Even there, but there is a considerably rise in the courses which are shorter of 6 months. So लोगों को जो स्टूडेंट्स है, ट्रेनिंग्स हैं, उनको ज्यादा इंटरेस्ट उन कोर्सों में है जो 6 महीने से कम है. मूक्स में फॉर एग्जांपल ऐसे कोर्सेज ज्यादा चल रहे हैं. ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट भी ले रहे हो, आपके पास स्किल नहीं है इसमें. इवन की जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी क्वालिटीज पे भी सीरियस डाउट है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही. फॉर एग्जांपल around 12 lakh the trainings are in 2004 and
those are unemployed, and now they are around 20 lakh in 2023 and 24. इससे पता चलता है क्वालिटी क्या है, बेसिक पर्पस क्या है इस चीज का है। ये तो होगी पूरे हिंदुस्तान की। अब स्टेटस जो है वोकेशनल एजुकेशन का पंजाब में क्या है। पंजाब अप्राइजल रिपोर्ट 2019 and 20 issued by the MHRD। पंजाब में तकरीबन 780 के करीब जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, दे आर प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन, बट 400 के करीब जो स्कूल्स हैं उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब अगर बच्चा प्रैक्टिकल नहीं करेगा, अगर थ्योरी ही पढ़ेगा, तो वो सीखेगा क्या। पंजाब गवर्नमेंट को 72 करोड़ ग्रांट सैंक्शन हुई थी 2018-19 में वोकेशनल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने सिर्फ 38 करोड़ ही यूटिलाइज की। There is also one study by the Pooja Chaudhary and her team. Pooja Chaudhary is an assistant professor in IBS Hyderabad. As per her study, vocational education is purely failed in Punjab, both in private and government colleges, private and government universities also. Among the reasons are the failures are the inadequate infrastructure, limited industry connection, outdated syllabus, insufficient practical training, and lack of national accreditations. Yeah, basically these are the reason for the private colleges also, and the government college वो तो है ही कम बहुत vocations. अगर इस स्टडी में रीजंस पूछे गए थे बच्चों से और टीचर से, ये रीजन क्या है इस फेलियर का। फॉर स्टूडेंट्स 47% स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन ड्यू टू लिमिटेड प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल कम। 34% स्टूडेंट फॉर देम लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। एडिशनली 31% स्टूडेंट उनका ये मानना था कि टीचर्स का मेनली काम था कि सिलेबस पूरा कराए किसी भी तरीके से, इससे ज्यादा नहीं। सो these are the challenges and these are the bottlenecks from the part of students. अगर टीचर्स की बात की जाए तो इन टीचर्स खुद कह रहे हैं कि 50% स्टाफ के पास तो सफिशिएंट प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं, ये टीचर खुद कह रहे हैं। इवन कि देयर फोकस इज ऑन जस्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस। देयर इज आल्सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, किस तरह के बच्चे को एडमिशन देनी है किसको नहीं रखनी, देयर इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आल्सो। करप्शन 44% लोगों ने इसका बताया, स्टूडेंट इनडिसिप्लिन है वगैरह वगैरह, ये चीज है। सो दिस इज द बेसिकली द ग्रिम पिक्चर ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन इन पंजाब। इट इज प्योरली ए फेल्ड मॉडल इन पंजाब। अगर आप गुजरात में जाओगे तो आपको लगेगा कि वोकेशनल एजुकेशन वहां पर अच्छी चल रही है। उसका एक रीजन ये भी है कि वहां पर इंडस्ट्री का लिंक है, वहां पर इंडस्ट्री पूरी तरह सेटअप है। यहां पर पॉलिटिकल विल भी नहीं है इंडस्ट्री पर। सो थर्ड पार्ट फ्रॉम फॉर द पटेल इज रूरल अपलिफ्टमेंट, रूरल एम्पावरमेंट। रूरल एम्पावरमेंट, द पटेल का रूरल एम्पावरमेंट का वही आइडिया था जो गांधी ने आइडिया था, गार्डियन विजन ऑफ ओशनिक सर्कल। ओशनिक सर्कल में क्या था कि एवरी विलेज शुड बी इंटरडिपेंडेंट, सेल्फ सस्टेन होना जरूरी है, उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन विल ब्रिज इंडिया सोशल इकोनॉमिक डिवाइड, अर्बन एंड रूरल डिवाइड आल्सो। सो बेसिकली रूरल एजुकेशन की जरूरत थी, इसके लिए हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, रमसा चल रहा है जो प्राइमरी और माध्यमिक एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहा है। देन वी हैव ई विद्या प्रोग्राम जिसका मेन फंक्शन है डिजिटल कंटेंट जो रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड करना है। एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं जो प्योरली ट्राइबल एरिया में चल रहे हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। इवन कि इस पीरियड में जो रूरल सेकेंडरी ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है वो भी अच्छी हुई है, 80% के करीब है। बट देयर आर आल्सो सम चैलेंजेस आल्सो इन द रूरल सेंट्रिक एजुकेशन। फर्स्ट इज डिजिटल डिवाइड।
this is a very big issue and serious issue. आज हम digitally बैठे हुए हैं यहाँ पे, online offline दोनों मोड है, but as per the India Inequality Report 2022, 45% people do not have the internet. 27% youth have not digital literacy. 47% schools in Punjab, they have on the internet facility. So it means the 53% schools, they do not have the internet facility. And इसमें भी वो ज्यादातर स्कूल है जो गांव में. Then दूसरा इशू है गांव में इंटरनेट कनेक्शन की क्वालिटी क्या है. So this is the issue, rural centric education में. Then the recruitment of the teacher. कल का ही लोकसभा में राज्यसभा में पूछा गया था कितने लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी एससी की सीट्स वैकेंसी है. उसमें 85% जो सीट्स थी वो रिजर्वेशन कैटेगरी की जो है वो अभी वेकेंट है. यूजीसी ने कई बार कहा है कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं. एंड द कॉलेजेस एंड मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी आर लोकेटेड इन द रूरल एरिया. सो दीज आर द चैलेंजेस. जब तक ये 2-3 चैलेंजेस पूरे नहीं होंगे, एनसीईआरटी का सिलेबस ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए नहीं होगा, डिजिटल डिवाइड को दूर नहीं किया जाएगा, तब हम जो पटेल का जो विजन है उसको पूरा नहीं कर सकते. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for sharing the extensive information with us that how Patel's vision is being achieved through modern initiatives in the field of education and what are the various drawbacks still we are facing. Thank you, sir.